Hello everyone, welcome to this particular session wherein today I'm going to talk about the official question paper solution discussion for chemistry paper 25th June shift 2. So I believe that all of you are excited to just know the solutions of this particular session 25th June evening shift. Hope that you have attempted each and every question nicely. Let's begin our session without any further delays. So herein, before I move ahead, let me actually talk to you regarding that you need to hit the like button, subscribe the channel and share this particular session at this very moment among your friends. Moving ahead, let me tell you one more thing, that you need to also connect with our Telegram channel wherein you will be getting the notifications of the further classes that are going to be held on this particular very platform of Aakash Byju's J. Well, by now, most of you might have known about this particular app of Aakash plus Byju's J/NEET app, your one-stop solution for all your preparation journey. So I feel that you are actually happy to explore this particular app. Reason being, we do have huge library of videos wherein you are going to easily go away with your difficult concept as well as with your easy concepts just with the help of the animated videos wherein. Isn't it? Yeah. Moreover, in this particular app, you are going to meet with your star educators like NV sir, GB sir, Apurv Mathur sir, Sachin Kapoor sir, and many more to go. So dear ones, without any delay, just please book your free trial today itself. This particular app is free for 14 days. Explore it and believe me, you won't regret it. Rather, you are going to thank me that I told you about this particular bit of information regarding this particular app. The link of this app has been given in the description box. Please download the app and enjoy your preparation journey because you need to outsmart your competitors. That's the main mantra you need to have into your mind. Well, moving ahead, and now no more discussion regarding anything. We'll be straight away going on to our question. So here is question number 1 in front of you. Question 1 क्या कह रहा है? See, we have already discussed memory-based questions. So most of the questions which you are going to find in this particular session will be similar to the memory-based questions we discussed in our session at that particular day. So over here, the particular question is regarding the minimum energy that must be possessed by photons in order to produce the photoelectric effect with platinum metal is. तो हमने ये क्वेश्चन तब भी डिस्कस किया था और आज भी दोबारा से हम डिस्कस कर रहे हैं. मिनिमम एनर्जी दैट मस्ट बी पोजेस्ड बाय द फोटोन्स क्या होती है? इट्स बेसिकली द वर्क फंक्शन वी नीड टू टॉक अबाउट. येस ऑफ कोर्स. तो यहाँ पर मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ कि फोटोन्स की एनर्जी, ओके, वी ओवर हियर आर टॉकिंग अबाउट द फोटोन्स. सो फोटोन्स की एनर्जी मिनिमम कितनी होनी चाहिए कि आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो हो सके, है कि नहीं? सो ओवर हेयर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वर्क फंक्शन. दैट मीन्स द मिनिमम एनर्जी पोजेस्ड बाय द फोटोन्स विल बी इक्वल टू द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल. अब वर्क फंक्शन हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इट्स बेसिकली W0 इज इक्वल्स टू H न्यू नॉट. क्लियर है? H क्या है? ये हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल्स सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय म्यू नॉट. म्यू नॉट क्या है? ये हमारी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है. ठीक है? So it's 1.3 into 10⁻15 second inverse. Okay. So this cancels out with this. We are left with our expression. You need to multiply it and hence we will be getting our answer. हमारा जो सही जवाब होगा, it will be 8.58 into 10⁻⁻19 joules. Hope you got my particular point. So over here, your answer for the question will be option number C. I hope most of you have done it correctly. We have discussed the same thing in our memory-based session also. So here we are with option number C. Without any delay, without any thinking, without thinking much over on this particular question, let's move straight away on to question number 2. तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? At 25 degree Celsius and 1 atm pressure, the enthalpy of combustion of benzene and acetylene are -3268 kilojoule per mole and -1300 kilojoule per mole respectively. The change in enthalpy for the reaction. Reaction क्या हो रहा है? Basically there is ethylene. Okay. Is it ethylene? No, it's not ethylene. It's ethine. Fine. It's C2H2 and that's
3 moles of C2H2 getting converted into benzene basically. So हमें enthalpy of reaction निकालना है, change in enthalpy of reaction निकालना है for this particular very resultant equation. How we are gonna do it? हमें hint दी हुई है regarding the enthalpy of combustion of benzene and regarding the enthalpy of combustion of acetylene. क्लियर है ये वाली बात? हाँ जी. तो यहाँ हम सबसे पहले क्या करने वाले, what we are going to do is, सबसे पहले लिखते हैं reaction for combustion of benzene. So straight away I'm going to write the equation. It's C6H6 in the liquid state plus 15 by 2O2 in the gaseous state, which gives us basically what? 6 CO2, okay ma'am, and thrice of H2O in the gaseous state. It is also in the gaseous state. Hope that's absolutely very much clear to you guys over here for this particular question. हाँ जी मैम. इसके लिए डेल्टा H1 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? -3268 किलो जूल पर मोल हमें ये वैल्यू गिवन है भाई. ध्यान रखिएगा इस बात का. ओके डन. कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं. अगर मैं सेकंड इक्वेशन के बारे में यहाँ बात करती हूँ, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ एसिटाइलिन के बारे में यहाँ बात करी जाए, सो इट्स C2H2 okay in the gaseous state plus 5 by 2 oxygen in the gaseous state, which basically gives us what? Twice of CO2, okay ma'am, plus H2O both are in the gaseous state. यहाँ पर डेल्टा H2 की वैल्यू हमें क्या गिवन है? इट्स -1300 किलो जूल पर मोल हमें गिवन है. तो क्या इन दोनों इक्वेशंस को हम कुछ इस तरह से रीअरेंज करें, तोड़े मरोड़े कि हमें हमारी रिजल्टेंट इक्वेशन मिल जाए, तो क्या हो जाएगा? बहुत अच्छी बात हो जाएगी. सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज अप्लाइंग द हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन. क्या मैं ये कर सकती हूँ? क्या कर सकते हो मैम आप? अगर मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देती हूँ, सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई इट बाय 3, तो क्या होगा? कैन यू जस्ट हैव ए लुक? क्या होगा यहाँ पर? मल्टीप्लाई बाय 3 कर देती हूँ मैं इसको. सो यस, इट्स थ्राइस ऑफ C2H2 वी वांट इन द रिजल्टेंट इक्वेशन. तो इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया. तो अब देखिए मैं क्या करने वाली हूँ. डेल्टा H3 लेट फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन एंड चेंज इन एंथैल्पी भी डेल्टा H3. तो यहाँ पर डेल्टा H3 क्या हो जाएगा? अप्लाइंग दी हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन, इट विल बी थ्राइस ऑफ डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1. बस आपको यही करना है. सो थ्राइस ऑफ डेल्टा H2 क्या है हमारे पास? -1300, ओके, माइनस ऑफ डेल्टा H1, दैट मीन्स माइनस एंड माइनस इट विल बी प्लस 3268 किलो जूल हमारे पास ये आ जाएगा, किलो जूल पर मोल. तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, व्हाट यू आर सर्टेनली गोइंग टू गेट इज, जस्ट लेट मी नो, इट्स -3900 प्लस 3268 we are having with us. So your answer to the question will be -632 किलो जूल पर मोल, -632 किलो जूल पर मोल. उस हिसाब से देखा जाए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब बनता है. चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन. कौन सी रिएक्शन? 3 moles ऑफ एसिटाइलिन गेटिंग कन्वर्टेड इनटू बेंजीन बेसिकली. 3 moles ऑफ इथाइन गेटिंग कन्वर्टेड इनटू बेंजीन बेसिकली. तो यहाँ पर हमने क्या किया? जो कंबशन वाली इक्वेशंस थी उनको हमने तोड़ा मरोड़ा और वी आर एक्चुअली नाउ इनटू आवर रिजल्टेंट इक्वेशन. हियर वी आर. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. यार थोड़ा लेमन लैंग्वेज यूज करने से आपको क्या होगा? इजीनेस फील होगा, आपको अच्छा लगेगा कि मैम तो हमारी ही लैंग्वेज भूल रही है. तो इसीलिए मैं थोड़ा लेमन लैंग्वेज यूज कर लेती हूँ व्हाइल वी एम टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री. नॉनदलेस मूविंग अहेड एंड लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3 हियर विद अस. क्वेश्चन है ये हमारे पास में, solute A है, it get associates in water. When 0.7 grams of solute A is dissolved in 42 grams of water, it depresses the freezing point by 0.2 degrees Celsius. अच्छा, 0.2 डिग्री सेल्सियस. द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट ए इन वाटर विल बी व्हाट? अगर मोलर मास ए का 93 ग्राम्स पर मोल है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 1.86 केल्विन केजी पर मोल. तो इसमें क्या करेंगे? क्या इसके अंदर हम इसमें हमें क्या बताना, क्या है हमें? परसेंटेज एसोसिएशन बताना है सॉल्यूट ए का. दैट मीन्स परसेंटेज एसोसिएशन अल्फा की वैल्यू हमें बतानी है फॉर सॉल्यूट ए. डेल्टा TF इज इक्वल्स टू IKF इंटू M है
है कि नहीं। डेल्टा टीएफ की वैल्यू गिवन है, हाँ जी 0.2 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ लिख दीजिए 0.2 डिग्री सेल्सियस। केल्विन भी, क्योंकि चेंज इन, क्योंकि डेल्टा टीएफ क्या है, टीएफ नॉट माइनस टीएफ, सो चेंज की जब हम बात करते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 1 केल्विन हम लेके चलते हैं, तो इट विल बी 0.2 केल्विन अब मान के चलिए। इट इज इक्वल्स टू आई इंटू केएफ, केएफ की वैल्यू क्या है 1.86। अब बात करते हैं मोलैलिटी के बारे में। Let's talk about molality. Molality is number of moles of solute present in the kg of solvent. Present in what? The kg of solvent. Moles क्या है 0.7 divided by 93. 0.7 divided by 93. ये आगे moles, number of moles of solute present in kg of solvent. की solvent क्या है हमारे पास 42 grams है, इसको kg में convert कर देते हैं तो वो 1000 ऊपर चला जाएगा। यस हमें इसको सॉल्व करना है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे आप अप्रोक्सीमेशन ले लीजिएगा, आपका जो आंसर आएगा फॉर आई को जब आप इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से सॉल्व करेंगे, यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल्स टू हाउ मच, कैलकुलेट करके बताइए अभी के अभी कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो आई इज इक्वल्स टू गोना कम एज 0.6, आई की वैल्यू 0.6 आ जाएगी। अच्छा मैम आई की वैल्यू आ गई है 0.6, हाँ जी। अब हम यहाँ पर एसोसिएशन के बारे में बात कर रहे हैं। सोल्यूट ए का एसोसिएशन हो रहा है वाटर में, तो अगर देखिए ट्वाइस ऑफ ए इट गेट एसोसिएटेड एंड वी आर गोइंग टू गेट A2, है कि नहीं। लेट एल्फा बी द डिग्री ऑफ एसोसिएशन, तो यहां पर देखिए अगर ये 1 माइनस एल्फा, यहां से एल्फा जो है, मैं ये कह रही हूं कि एल्फा अमाउंट जो है वो एसोसिएट हो रहा है, तो यहाँ पर एल्फा बाय 2 अमाउंट बन भी तो रहा होगा, बिल्कुल सही मैम। तो अगर मैं आई के बारे में बात करती हूँ, इट्स बेसिकली द ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन द पार्टिकल्स टेकन। अभी ऑब्जर्व नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो यहां पर अगर मैं टोटल मोल्स के बारे में बात करती हूँ, इफ आई जस्ट टॉक अबाउट टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इट्स 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बाय 2, दीज आर द ऑब्जर्व नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय 1 जो हमने इनिशियली पार्टिकल्स को लिया था। क्या मैं ऐसे कर सकती हूँ? बिल्कुल मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ। तो मेरा जो आई का वैल्यू आएगा इट विल बी 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बाय 2, तो ये क्या हो गया 1 प्लस एल्फा बाय 2 हो गया मेरा यहाँ पर आई की वैल्यू। और आई की वैल्यू मैंने कैलकुलेट भी की थी, 0.60 मैंने कैलकुलेट की थी, हाँ जी। तो मुझे एल्फा की वैल्यू पता करनी है, बिल्कुल करनी है एल्फा की वैल्यू पता मुझे, तो एल्फा बाय 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस, अगर यहाँ पर ओहो यहाँ 1 माइनस एल्फा बाय 2 आएगा, 1 माइनस एल्फा बाय 2, आई एम सॉरी। सो यहाँ देखिए एल्फा बाय 2 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.6 हो जाएगा, 60 कह लीजिए। एल्फा बाय 2 क्या हो गया 0.40 हो गया, तो एल्फा क्या आ गया 0.80 आ गया। तो अगर मुझे परसेंटेज ऑफ एल्फा के बारे में यहाँ बातचीत करनी हो तो मैं क्या करूंगी, आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। अगर मुझे परसेंटेज ऑफ एल्फा दैट मीन्स परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन ऑफ सोल्यूट ए के बारे में बात करूंगी, इट विल बी 80%। उस हिसाब से देखा जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है कि नहीं। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है, दैट्स एब्सोल्युटली राइट, यस मैम। तो ये इस तरह का क्वेश्चन मैंने मेरी शिफ्ट में भी करवाया था, क्योंकि 25 जून शिफ्ट 2 का पेपर मैं ही आप लोगों के सामने लेकर आई थी, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के साथ में। तो मुझे पता है कि मैंने किस तरह से सॉल्व किया था एंड क्या क्या क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए थे। दिस वाज आल्सो वन ऑफ द क्वेश्चंस टू बी डिस्कस्ड बाय मी। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये भी हमने डिस्कस किया था, सेम बिस्मत ही था हमारे पास में, यहाँ पर बी बिस्मत सल्फाइड ही था हमारे पास में। हमें यहाँ दिया हुआ है द केएसपी फॉर बिस्मत सल्फाइड, केएसपी फॉर बिस्मत सल्फाइड Bi2S3 क्या दिया हुआ है 1.08 इंटू 10⁻⁷ दिया हुआ है। सॉल्युबिलिटी हमें पता करनी है किसकी, Bi2S3 की, इन मोल्स पर लीटर है 298 केल्विन। तो क्या मैं पहले इस Bi2S3 को इस पर्टिकुलर फैशन के अंदर ब्रेक कर सकती हूँ, ट्वाइस ऑफ Bi3 पॉजिटिव प्लस थ्राइस ऑफ सल्फाइड आयंस, ठीक है। तो एस बी दी सॉल्युबिलिटी, अगर एस सॉल्युबिलिटी है तो इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी हो जाएगी ट्वाइस ऑफ एस, और इसकी कितनी हो जाएगी थ्राइस ऑफ एस हो जाएगी। केएसपी क्या होता है, केएसपी क्या होगा, इट विल बी Bi3 पॉजिटिव रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय S2 नेगेटिव रेज टू पावर 3। तो यहां हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एस रेज टू पावर 2 एंड थ्राइस ऑफ एस रेज टू पावर थ्राइस, ठीक है, क्लियर है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे इस पर्टिकुलर थिंग को, यू आर गोइंग टू गेट द आंसर एज 108 S रेज टू पावर 5, और केएसपी की वैल्यू हमें गिवन है कितनी 1.08। क्या मैं 1.08 इन 10⁻⁻73 को 108 इंटू 10⁻⁻75 लिख सकती हूँ? हाँ जी बिल्कुल लिख सकती हूँ। अब तो सॉर्ट आउट इजीली हो जाएगा। हमें क्या पता करना है, हमें बेसिकली एस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहां से आप देख लीजिए इट्स S रेज टू पावर 5,
s रेज टू पावर 5 है भाई ये, और ये है अब 108 कैंसिल आउट हो गया, s रेज टू पावर 5 इज इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर -75, तो s इज इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर -75 रेज टू पावर 1/5, सो -75 मल्टीप्लाइड बाय 1/5 कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर -15, 10 रेज टू पावर -15। तो सॉल्युबिलिटी जो है Bi2S3 की इन मोल्स पर लीटर वो क्या हो जाएगी, 10 रेज टू पावर -15 मोल्स पर लीटर हो जाएगी। उस हिसाब से अगर हम देखना चाहें, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, डन डन डन, बहुत सिंपल था। आपने शिफ्ट टू 25 जून का मेरा मेमोरी बेस्ड सेशन जरूर देखा होगा, तो उस हिसाब से तो आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर भी याद होगा, है कि नहीं, पता होगा कैसे सॉल्व करते हैं। अब आते हैं मैच द फॉलोइंग पे। हमारे पास में यहाँ पर क्या गिवन है, we need to match the list 1 with the list 2, zymase, urease, diastase and pepsin, ये enzymes हमें given है। Basically, we need to correctly match these enzymes with their particular right form, okay? तो अगर मैं zymes enzyme की बात करती हूँ, I mean to say ये हमारे हैं enzymes, और इन enzymes का source क्या है, ठीक है, ये हमें मैच करनी है, एंजाइम्स को हमें सोर्स से मैचअप करना है। तो जाइमेज एंजाइम के बारे में बात करते हैं, इसका सोर्स क्या है, यीस्ट है, फर्स्ट का बी होगा। यूरिएज के बारे में बात करते हैं, इफ आई जस्ट टॉक अबाउट यूरिएज एंजाइम, इसका जो सोर्स है इट्स ऑप्शन नंबर डी, सोयाबीन। डाइस्टेज के बारे में अगर हम बात करते हैं, डाइस्टेज के बारे में, तो इसका सोर्स है ऑप्शन नंबर सी, माल्ट। और पेप्सिन, पेप्सिन तो यार पेप्सिन जो है इट्स बिन सिक्रीटेड, ठीक है, पेप्सिन क्या होता है, सिक्रीट होता है इन द स्टमक बेसिकली, सो यहां पर इट इज ऑप्शन नंबर ए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 1 मैचेस विद बी, 2 मैचेस विद डी, 3 मैचेस विद सी एंड 4th मैचेस विद ए। 1B 2D, 1B 2D 3C एंड 4th A। एब्सोल्युटली राइट, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है। हमें एंजाइम्स को उनके सोर्सेस के साथ मैच करना था, एंड दीज आर द आंसर्स गिवन टू यू ओवर है। होप दैट्स एब्सोल्युटली फाइन टू यू। यस मैम। चलिए, विदाउट एनी डिले मूविंग अहेड एंड लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 6 ओवर है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज ऑफ क्लोरीन, फ्लोरीन, टेलुरियम एंड पोलोनियम इज। यार ये तो बहुत सिंपल, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी क्वेश्चन है। क्लास 11th के अंदर ये क्वेश्चन तो आपने जरूर पढ़ा ही होगा। यहाँ पर हमें ये तो पता है कि अगर मुझे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में बात करना है, व्हाट वी मीन बाय इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली। तो यहाँ पर क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या होगी, वो सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, फॉलोड बाय फ्लोरीन। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू इंक्रीजेस। लेकिन फ्लोरीन और क्लोरीन के केस में देखा जाए, फ्लोरीन का साइज छोटा है, जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा काफी रिपल्शन होगा, अनस्टेबिलिटी होगी। इसी वजह से जब हम क्लोरीन के पास में आते हैं, क्लोरीन का साइज फ्लोरीन से बड़ा है, तो क्लोरीन इजीली इलेक्ट्रॉन को एड ऑन कर लेगा। तो इसी वजह से क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू फ्लोरीन। ये तो हमें पता चल गया। बिटवीन टेल्यूरियम एंड पोलोनियम, व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, वो डिक्रीज करती है। हमें पता है उससे टीपो, है कि नहीं। सो व्हेन वी आर मूविंग डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू क्या होती है, वो डिक्रीज करती है। इस हिसाब से देखा जाए तो it will be then tellurium and the last one will be polonium। क्लियर है। तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी से आप सेटिस्फाइड है, ये है हमारा सही जवाब। इसके बारे में ज्यादा चर्चा ना करते हुए, ऑप्शन बी को सही मार्क करते हुए, मूविंग हेड ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7 नाउ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा एक स्टेटमेंट टाइप ऑफ अ क्वेश्चन है, जहां पर स्टेटमेंट 1 ये कह रहा है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ब्लिस्टर कॉपर डिपॉजिट्स प्रीशियस मेटल। सबसे पहले ब्लिस्टर कॉपर क्या होता है, इट्स बेसिकली कॉपर ऑक्साइड ओनली, Cu2O है। लेकिन उसे ब्लिस्टर कॉपर क्यों कहा जाता है, क्योंकि रिएक्शन के दौरान Cu2O में से SO2 बाहर निकल जाती है, हेंस वहां पर ब्लिस्टर्स आ जाते हैं Cu2O के ऊपर, इसलिए हम उसको ब्लिस्टर कॉपर कह देते हैं। वेल मैं आपको बता दूं, Cu2O ब्लिस्टर कॉपर जो हमारा है, ये बात इट्स बेसिकली प्योर। कितना परसेंट प्योर, 98 to 99% ये प्योर है। ठीक है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ब्लिस्टर कॉपर डिपॉजिट प्रेशियस मेटल, ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, बिकॉज ब्लिस्टर कॉपर कंटेन्स गोल्ड, सिल्वर, जिंक, ठीक है, एज इम्प्योरिटीज। वो एज इम्प्योरिटीज इन प्रेशियस मेटल को कंटेन करता है ब्लिस्टर मेटल, विच बेसिकली सेटल डाउन एट एनोड मड, विच बेसिकली सेटल डाउन एज अनोड मड।
एनोड मड की तरह वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। बात करते हैं इन द सेकंड स्टेटमेंट की, इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर कॉपर बाय इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड कॉपर ब्लिस्टर इज यूज्ड टू मेक द एनोड। हाँ जी, ये भी बात सही है, कॉपर ब्लिस्टर ही हमारा एनोड होता है। ठीक है, क्लियर है ये वाली बात। तो यहां पर ब्लिस्टर कॉपर जो है ये एनोड होगी भाई, ध्यान रखिएगा, बिकॉज इम्प्योर कॉपर इज मेड, इम्प्योर कॉपर जो है उसको हम एनोड बनाते हैं और प्योर कॉपर जो है इज मेड ऑफ कैथोड। ये ब्लिस्टर कॉपर हमारा इम्प्योर कॉपर है जिसमें इम्प्योरिटीज होती हैं, इसको एनोड बनाते हैं, तभी तो जो इम्प्योरिटीज है एनोड मड की तरह नीचे सेटल डाउन हो जाती है। ठीक है, और प्योर कॉपर को हम कैथोड रॉड बनाते हैं। ध्यान रखिएगा इस पर्टिकुलर बात का। दैट्स एब्सोल्युटली फाइन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, तो कैसे ब्लिस्टर कॉपर एक तरह से बनता है, देखिए हमने लिया कॉन्सेंट्रेटेड ओर, उसको रोस्ट किया विद ऑक्सीजन, हमें मिला Cu2S, कॉपर मेट मिला, और जब हमने उसको ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवाया, दैट मीन्स ऑक्सीजन ब्लास्ट रिएक्शन हुआ, तब हमें क्या मिला, Cu2O अलॉन्ग विद द इवोल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ब्लिस्टर कॉपर मिला, विद विच जो ये Cu2O है ये फर्दर रिएक्ट करेगा Cu2S के साथ में और हमें मिलेगा कॉपर प्योर 6Cu प्लस SO2 हमें मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा इस पर्टिकुलर चीज का। डन, तो हमारा इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। द एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर इज एक्सप्लेन्ड बाय यूजिंग लुईस बेस कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन कह रहा है कि एम्फोटेरिक नेचर जो वाटर का है वो हम एक्सप्लेन करते हैं बाय यूजिंग लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। भाई लुईस एसिड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। लुईस बेस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। तो H2O इज लुईस बेस, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, H2O है, लुईस एसिड नहीं बन सकता। लुईस एसिड क्या होते हैं, ऐसे स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। मोर ओवर ऑक्सीजन के पास में कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है जो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। तो हम एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन नहीं करते हैं, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं फ्रॉम ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट से, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट से हम एक्सप्लेन करते हैं। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, the species which loses the proton is acid, the species which gains the proton is base। तो अगर मैं H2O के बारे में बात करना चाहूं, being to form an acid basically, तो यहां पर we are going to form OH negative प्लस NH4 पॉजिटिव। तो यहां पर क्या हुआ, प्रोटोन क्या हुआ, लॉस हुआ। तो H2O over here is being a acid। अब अगर मैं बात करूं H2O प्लस H2S के बारे में, तो आप यहां पर देखेंगे इट्स H3O पॉजिटिव प्लस HS नेगेटिव, इट्स प्रोटोन एक्सेप्टर, यहां इसने प्रोटोन एक्सेप्ट कर लिया, गेन प्रोटोन। ठीक है, तो ऑप्शन आई मीन टू से असर्शन जो है वो हमारा क्या है, फॉल्स है। वाटर एक्ट एज एन एसिड विद अमोनिया एंड अ बेस विद H2S, बिल्कुल सही बात है, यही तो मैंने आपको बताया। तो A इज फॉल्स बट R इज ट्रू, इज ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर टू बी मार्क्ड फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। डी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए ये चुटकियों वाले क्वेश्चन है, आई जस्ट वांट कि हम इस पर्टिकुलर पेपर को फटाफट से कंप्लीट करें विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। बीइंग अ स्टूडेंट मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर को कोशिश करती कि मैं 45 मिनट से कम टाइम में अटेम्प्ट कर दूं। ठीक है, बीइंग अ स्टूडेंट कोशिश मेरी यही रहती, बट बीइंग अ टीचर आई नीड टू मेक यू एक्सप्लेन, तो थोड़ा टाइम लग सकता है बट विल मेक श्योर कि हम इसे जल्द से जल्द कंप्लीट करें। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज, हमें रिडक्शन पोटेंशियल के करेक्ट ऑर्डर को यहाँ फाइंड आउट करना है। वैसे आपको बता देती हूँ, ये जो Li पॉजिटिव टू Li वाला है ये सिनेरियो, इसका रिडक्शन पोटेंशियल का जो वैल्यू है ये नेगेटिव आता है, -3.05। ध्यान है आपको, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेस होता है, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा लेस होता है, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा हाई होता है। ठीक है, ये तो बात आपको पता होगी। तो उस हिसाब से जो E है वो सबसे लास्ट में आना चाहिए, तो C और D तो आउट ऑफ द रेस हो चुके हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करती हूँ क्लोरीन के बारे में, ठीक है, इसकी जो वैल्यूज है क्लोरीन की, इट्स 1.36 स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू फॉर क्लोरीन टू क्लोराइड आयन।
आयोडीन टू आयोडाइड आयन की 0.54 है। ये वैल्यूज आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दी हुई हैं, सो मेक श्योर कि आप इनको थोड़ा बहुत याद कर लें या मेमोराइज कर लें। अदरवाइज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मेरे वन शॉट सेशंस हैं, उनके अंदर मैंने आपको एक टेबल बताई हुई है। उस टेबल को अगर आप याद कर लेते हैं तो काफी चीजें उससे सॉर्ट आउट हो जाएंगी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की ही वो टेबल है, सो प्लीज गो टू दैट पर्टिकुलर सेशन एंड वॉच इट कि मैंने क्या बताया हुआ है। इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होता है 0.80 और इसका -2.71 होता है। वैसे लिथियम और सोडियम आसपास में ही होते हैं, तो लिथियम के बाद में डी कैन कम। चलिए भाई डी और ई तो आ गए, लेकिन फिर देर इज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन क्लोराइड, आयोडाइड एंड सिल्वर बेसिकली, दैट्स द मेन थिंग। सो यू हैव टू गो हेड विद दैट पर्टिकुलर थिंग। अकॉर्डिंगली देखा जाए यहाँ पर इट विल बी ए सी बी डी ई, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब बैठता है। The correct order of reduction potential of the following pair is, लिथियम का भी ऑल नो, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज्यादा लेस होती है, तो ई सबसे लास्ट में। लिथियम के बाद सोडियम भी आ जाता है, एल्कली मेटल है तो उसके बाद में आ जाता है, दैट्स द मेन थिंग। इन तीनों के अंदर यू नीड टू एक्चुअली टॉक अबाउट, ठीक है, ये आप प्लीज देख लीजिएगा। देयर इज एन एनसीईआरटी टेबल गिवन टू यू, तो यू नीड टू लर्न इट। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब बैठता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी हमने मेमोरी बेस में किया था। द नंबर ऑफ ब्रिज्ड ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड बी फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन इज, तो ये हमारे पास लेड नाइट्रेट हमें यहां पर दिया हुआ है। तो लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करेंगे एट अ टेम्परेचर ऑफ 673 केल्विन, पीबीओ O2 सब आया, मान लिया, इसके साथ में वी आर गोइंग टू इवॉल्व आउट NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है इट इज गोइंग टू डाइमराइज एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ N2O4। अब इन्होंने यही बोला है कंपाउंड बी के अंदर कितने ब्रिज्ड ऑक्सीजन एटम्स है। लेट मी टेल यू कि N2O4 का जो स्ट्रक्चर्स हम देखते हैं, इट्स बेसिकली डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये देखिए O यहाँ एंड दिस इज O यहाँ पर, ठीक है। आप इसको किसी और तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे एन सिंगल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ये देखिए ओ नेगेटिव एंड ओ नेगेटिव करके भी आप इसको लिख सकते हैं। टोटली अप टू यू, लेकिन यहाँ पर क्या आपको कोई ब्रिज्ड ऑक्सीजन एटम दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन ए को विल बी मार्किंग इट एज अ राइट आंसर 0। Let's talk about question number 11 now. The metal ion in gaseous state with lowest spin only magnetic moment. Lowest spin only magnetic moment. Lowest spin only magnetic moment का मतलब यहाँ पर ये है कि हमें less number of unpaired electrons देखने को चाहिए। अगर मैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करती हूँ, वेनेडियम की, जिसका एटॉमिक नंबर 23 होता है, सो इट्स बेसिकली 3d3 4s0। निकल का देखा जाए Ni2 पॉजिटिव का, इट्स बेसिकली हाउ मच, इट्स बेसिकली 3d। अगर निकल Ni2 पॉजिटिव के बारे में बात करते हैं, इफ आई जस्ट टॉक अबाउट Ni2 पॉजिटिव, इट्स 3d8 4s0। Cr2 पॉजिटिव के बारे में बात करते हैं, इट्स 3d4 4s0। Fe2 पॉजिटिव के बारे में बात करेंगे, 3d6 एंड इट्स 4s0, काइंड ऑफ लाइक दिस। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात की जाए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में अगर मैं यहाँ बात करती हूँ, सो यहाँ पर है 3, यहाँ पर आप देखेंगे इट्स 1 2 3 4 5 देन 6 7। चलिए बना ही लेते हैं, दैट्स एब्सोल्युटली नो डाउट। 1 2 3 4, सो इट्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। देर आर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। इन द केस ऑफ Fe2 पॉजिटिव यू आर गोइंग टू गेट 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगेन। सो लोवेस्ट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट उसी का ही होगा जिसके पास में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम है, क्योंकि म्यू की जो वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, इट्स √2 इंटू 2 + 4, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू √8। सो इसका सबसे ज्यादा कम लोवेस्ट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू आएगा। वी आर गोइंग टू मार्क एज ऑप्शन नंबर बी एज द राइट आंसर। वेल, इसका आंसर क्या आना चाहिए? इट विल बी 2.9 बोहर मैग्नेटॉन, जिसको आप 3 बोहर मैग्नेटॉन भी लिख सकते हैं। बताइए, दैट्स एब्सोल्युटली कूल। यस मैम। चलिए लेट्स मूव अवे स्ट्रेट ऑन टू ऑप्शन नंबर 12, नॉट ऑप्शन नंबर 12, इट्स क्वेश्चन नंबर 12। इसका जो ऑप्शन था क्वेश्चन नंबर 11 का, फॉर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट लोवेस्ट वैल्यू, वो निकल टू पॉजिटिव की थी। क्वेश्चन नंबर 12, आप सोचिए, आंसर दीजिए। मैं इतने पानी पी लेती हूँ बिकॉज कॉन्टिन्यूसली बोलना थोड़ा सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। सो आप मुझे इसका जवाब दीजिए। होप आपने इसका जवाब दे दिया होगा, आपको इसका आंसर पता भी होगा।
a polluted water may have a value of BOD of the order of 17 ppm. Polluted water may have कुछ नहीं है भाई, may have के बारे में हम डिस्कस ही नहीं करेंगे. Highly polluted water could have a BOD value of 17 ppm or more. ठीक है, क्लियर है ये वाली बात? जल्दी से बताइए. ठीक है, हाँ जी. may have और could have a BOD of the order of 17 ppm, बिल्कुल सही. अगर हमें अनपॉल्यूटेड वाटर चाहिए, फ्रेश वाटर चाहिए, तो उसके अंदर जो BOD का हम बताते हैं वैल्यू, इट्स लेस देन 5 ppm. लेकिन उससे ज्यादा हम कह रहे हैं 17 ppm, इट्स हाईली पोल्यूटेड वाटर. सो यस, इट्स ट्रू, ए इज करेक्ट. बी के बारे में बात करते हैं. BOD इज अ मेजर ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज बोथ द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मटेरियल इन वाटर. यार ये तो मैं कहूंगी नॉट करेक्ट, क्योंकि BOD क्या है? इट्स द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय whom? बाय बैक्टीरिया. फॉर व्हाट? टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर. It's the amount of oxygen required by bacteria to break down the organic matter present in a certain volume of sample of water, and that is known to be as BOD. तो हमारा रीजन क्या है? R जो है वो है false. ऑप्शन नंबर C, A is correct but R is not correct is the right answer. ऑप्शन नंबर C हमारा सही जवाब है. मूविंग अहेड, एक और क्वेश्चन आ गया है. क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे. असर्शन कह रहा है अ मिक्सचर कंटेन्स बेंजोइक एसिड एंड नेफ्थलीन. अच्छी बात है. द प्योर बेंजोइक एसिड कैन बी सेपरेटेड आउट बाय द यूज ऑफ बेंजीन. भाई मैं कहूंगी ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि बेंजीन के अंदर बेंजोइक एसिड और नेफ्थलीन दोनों ही सॉल्युबल हैं. क्यों? देखिए, बेंजीन नॉन पोलर है, ठीक है, नेफ्थलीन नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर रिजॉल्व हो जाते हैं. अब आप कहेंगे मैम बेंजोइक एसिड कैसे सॉल्युबल हो सकता है, वो तो पोलर है. लेकिन बेंजोइक एसिड का जो बल्क मॉलिक्यूल है वो तो नॉन पोलर है ना. बेंजोइक एसिड का जो ये बल्क मॉलिक्यूल है वो क्या है? इट इज बेसिकली नॉन पोलर. तो यस, इट इज गोइंग टू गेट सॉल्युबल इन बेंजीन. ध्यान रखिएगा इस पर्टिकुलर बात का. सो बेंजीन एंड नेफ्थलीन विल डिसॉल्व इन बेंजीन. रीजन? नेफ्थलीन का तो बता ही दिया, नॉन पोलर. बेंजोइक एसिड का बल्क मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर. ठीक है, एक और बात, एट रूम टेम्परेचर इसकी लो सॉल्युबिलिटी होती है वाटर के अंदर. बेंजोइक एसिड की लो सॉल्युबिलिटी होती है इन वाटर एट रूम टेम्परेचर, लेकिन इट इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर. तो ये एक हमारा फॉल्स हो गया, एक हमारा ट्रू हो गया. उस हिसाब से ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट. ये मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था मेमोरी बेस्ड सेशन में 25 जून इवनिंग शिफ्ट में. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है. चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में. क्वेश्चन 14 हमसे क्या कह रहा है? भाई क्या कह रहा है? भाई पूछो क्या कह रहा है हमसे. क्वेश्चन 14 कह रहा है हमको, ड्यूरिंग हेलोजन टेस्ट सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट. हेलोजन टेस्ट के वक्त में सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इज बॉइल्ड विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 टू रिमूव अनरिएक्टेड सोडियम, डिकम्पोज साइनाइड और सल्फाइड ऑफ सोडियम, एक्सट्रैक्ट हेलोजन फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड, मेंटेन द pH ऑफ एक्सट्रैक्शन. देखिए, ड्यूरिंग द टेस्ट फॉर हेलोजन इफ नाइट्रोजन और सल्फर, ड्यूरिंग द टेस्ट ऑफ हेलोजन इफ नाइट्रोजन, मैं नाइट्रोजन की बात कर रही हूं, एंड सल्फर या और सल्फर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द कंपाउंड, देन सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट जो होता है इज बेसिकली फर्स्ट बॉइल्ड विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड टू डिकम्पोज व्हाट? द साइनाइड, ठीक है, और द सल्फाइड, ओके, ऑफ सोडियम फॉर्म्ड ड्यूरिंग लैसाग्नेस टेस्ट. ठीक है, तो हेलोजन का टेस्ट करते समय अगर नाइट्रोजन और सल्फर प्रेजेंट है तो उनको रिमूव करने के लिए, उनको डिकम्पोज करने के लिए हम उसको पहले इनिशियली बॉइल करते हैं विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड टू डिकम्पोज द साइनाइड और सल्फाइड ऑफ सोडियम फॉर्म ड्यूरिंग लैसाग्नेस टेस्ट. बाकी सारी चीजें इज नॉट अप टू द मार्क. ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है. ये आप अपनी लेबोरेटरीज में भी आप लोगों ने किया होगा इन 12th क्लास. सिंस आप जेई का एग्जाम दे रहे हैं तो 12th क्लास में आपने जरूर किया है इन द बोर्ड्स, इन द लेबोरेटरी. सो ये हमारा राइट जवाब है, ऑप्शन नंबर बी, द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. होप दैट्स एब्सोल्युटली सैटिस्फैक्टरी एंड अंडरस्टैंडेबल टू ईच एंड एवरीवन वाचिंग दिस पर्टिकुलर सेशन.
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। अमंग्स द फॉलोइंग द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन केमिकल रिएक्शन। ये भी क्वेश्चन हमने किया था, बहुत अच्छे से बारीकी से किया था। हमारे पास ये पर्टिकुलर कंपाउंड गिवन है, इसका रिएक्शन ब्रोमीन और फिर मिथेनॉल के साथ में हुआ है। तो जब इसका रिएक्शन सबसे पहले ब्रोमीन के साथ में होगा तो इनिशियली क्या होगा, आप बताएंगे? व्हाट्स बेसिकली गोइंग टू हैपन ओवर हियर? चलिए बताइए क्या होना चाहिए यहाँ पर। व्हाट इज गोइंग टू हैपन ओवर हियर? हमें एक तरह का ब्रोमोनियम आयन मिलेगा। क्या मिलेगा? ब्रोमोनियम आयन मिलेगा। ठीक है, एंड वी विल बी गेटिंग काइंड ऑफ लाइक दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, कुछ ऐसा हमें मिलेगा। ओके, डन। अब क्या होगा यहाँ पर? MEOH, ये यहां से अटैक करेगा और ये यहां जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? समझना भी चाहिए आपको मेरी बात को। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे ही ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला ब्रोमीन बॉन्ड टूटेगा, यहाँ कार्बोकेटाइन बनने की आसार होंगे फॉर सेकेंड्स ओनली। ये कार्बोकेटाइन विल बी स्टेबिलाइज्ड बाय द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, चाहे वो सेकंड्स के लिए ही करे। ठीक है, तो इसी वजह से अटैक हमने इस साइड से करवाया एंड हेंस वी आर गोइंग टू गेट द आंसर एज ये OMe जो आएगा अबव द प्लेन होगा, इट विल बी अबव द प्लेन, और ये ब्रोमाइड जो है इट विल बी बिलो द प्लेन। सो ये हमारा राइट एंड द मेजर प्रोडक्ट होगा फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस बेसिकली। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी मैम, बिल्कुल क्लियर है। तो इट्स ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। आई होप देयर इज नो डाउट इन इट। बहुत सिंपल सा था, थोड़ा सा स्टीरियो केमिस्ट्री का आपको ध्यान रखना था यहाँ पर। अच्छा, ये क्वेश्चन देखिए, इट्स ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। इन द गिवन रिएक्शन ए कैन बी बेंजाइल ब्रोमाइड, ब्रोमोबेंजीन, साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड और मिथाइल ब्रोमाइड। क्या होगा यहाँ पर? और हम इसका रिएक्शन करवा रहे हैं 2 moles ऑफ मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। तो यार अगर हम मैग्नीशियम के साथ इसका रिएक्शन करा रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ क्लिक हो रहा है। एल्काइल या अराइल हैलाइड होना चाहिए ना, तभी तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। और फिर मिथाइल बेंजोएट के साथ में कराएंगे। वेल, मिथाइल बेंजोएट का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए आपको। मिथाइल बेंजोएट का स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड O OCH3, ये है मिथाइल बेंजोएट का स्ट्रक्चर। तो एक तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, फिर वो कार्बोनिल के साथ रिएक्शन करेगा और फिर हमें अल्कोहल बनेगा। तो उस हिसाब से अगर मैं बात करना चाहूं, ये हमारे पास बेंजाइल ब्रोमाइड दिया हुआ है, C6H5CH2Br दिया हुआ है। ब्रोमोबेंजीन ज्यादा कूल लगता है। साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड, हम वैसे अराइल हैलाइड की बात कर रहे थे। एंड देन इट्स मिथाइल ब्रोमाइड। मिथाइल ब्रोमाइड का तो कोई फंडा ही नहीं बनता, क्योंकि हमें यहाँ पर बेंजीन रिंग चाहिए, बेंजीन रिंग चाहिए। तो भाई साइक्लोहेक्साइल और मिथाइल ब्रोमाइड तो मैं आउट ऑफ द रेस वैसे ही कर देती हूँ। बेंजाइल ब्रोमाइड और ब्रोमोबेंजीन में से मैं कहूंगी ब्रोमोबेंजीन विल बी बेस्ट सूटेड। बेंजाइल ब्रोमाइड से भी वी आर नॉट गोइंग टू फॉर्म बिकॉज इट्स CH2Br, C6H5CH2Br, तो वो भी नहीं सूटेबल होगा। ब्रोमोबेंजीन से इसको करके देखते हैं, वील बी श्योरली गेटिंग द आंसर। तो अगर मैं लेती हूँ 2 मोल्स ब्रोमोबेंजीन के, इसका रिएक्शन करवाया विद 2 moles ऑफ मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, तो हमें क्या मिलेगा? हमें हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहां पर मिल जाएगा। इट्स MgBr ओवर हेयर। यहां पर आप देख लीजिए दिस डेल्टा नेगेटिव यहां पर और डेल्टा पॉजिटिव इसके ऊपर। अब अगर इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ में? अभी तो बताया था किसके साथ में करवा रहे हैं। इट्स बेसिकली मिथाइल बेंजोएट। ठीक है, इट्स C डबल बॉन्ड O, इट्स OCH3। क्लियर है ये वाली चीज? सिंपल है। अब तो इसके 2 मोल्स हैं, तो पहला 1 मोल रिएक्ट करेगा, फिर दूसरा मोल रिएक्ट करेगा। चलिए, जब पहला मोल रिएक्ट करता है, जब पहला मोल रिएक्ट करेगा, ध्यान से देखिएगा, मैं बीच में रब भी कर दूंगी क्योंकि मेरे पास स्पेस की यहाँ पर कमी है। ये पहला मोल रिएक्ट कर रहा है किसके साथ में? मिथाइल बेंजोएट के साथ में, C डबल बॉन्ड O OCH3। तो यहां से ये अटैक करेगा, इट गोज ओवर हेयर, और हमें क्या मिलेगा? ध्यान से देखिएगा, इट्स कार्बन, इट्स O नेगेटिव, MgBr पॉजिटिव, इट्स OCH3। ठीक है, यहां हमें एक बेंजीन मिला,
इसको मैं C6H5 एज इट इज लिख दे रही हूँ। C6H5 बेंजीन रिंग ही है, ये वापस से आएगा, ये निकल जाएगा। वी आर देन लेफ्ट विद C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर C6H5 है, यहाँ पर भी C6H5 है। अगर दोबारा से इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं, सेकेंड मोल ऑफ आर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये डेल्टा नेगेटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव फॉर श्योर शॉर्ट, और फिर आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दीजिए। शॉर्ट हमारा जो आंसर आएगा वो ये वाला प्रोडक्ट आएगा, द प्रोडक्ट गिवन ओवर हेयर। यस, सो हमारा जो अंदाजा था ऑप्शन नंबर बी ब्रोमोबेंजीन, वो बिल्कुल सही जवाब था। हमारा अंदाजा क्या था? बिल्कुल सही अंदाजा था कि नहीं था? एब्सोल्युटली था, उसमें क्या दिक्कत है कि नहीं? तो ब्रोमोबेंजीन होगा ए। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस ऑन रिएक्शन सीक्वेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस ऑन रिएक्शन सीक्वेंस विल नॉट गिव एसिटोफिनॉन। एसिटोफिनॉन का पहले स्ट्रक्चर बनाइए, क्योंकि आप में से काफी बच्चों को एसिटोफिनॉन का स्ट्रक्चर शायद पता हो, शायद नहीं पता हो, कहीं गलती हो सकती है। सो दिस इज बेसिकली एसिटोफिनॉन। ये क्या है? ये है हमारा एसिटोफिनॉन है, ये बनना चाहिए। अगर मैं ए कंपाउंड लेती हूँ बेंजेल्डिहाइड और उसका रिएक्शन CH3MgBr के साथ में कर रही हूँ, C6H5 C डबल बॉन्ड O एंड H, इसका रिएक्शन में CH3MgBr के साथ में करूंगी, तो इनिशियली रिएक्शन मैकेनिज्म तो आपको सबको पता ही है। इट इज गोइंग टू गेट अस C6H5 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है? CH3 एंड ऑल, या तो हमें नॉट की बात करनी है यहाँ पर। नहीं 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 नहीं, ये डायरेक्टली डबल बॉन्ड O नहीं बनेगा, यहाँ पर इट इज CH3 और ये OH आएगा जब हम H3O पॉजिटिव के साथ में। अब अगर इसकी रिएक्शन हम करते हैं सोडियम डाइक्रोमेट के साथ में Na2Cr2O7, जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अब हमें मिल जाएगा C6H5 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। तो हमारे को ऑप्शन नंबर ए से मिल रहा है एसिटोफिनॉन। अगर मैं ऑप्शन नंबर बी की बात करती हूँ, जहां पर इट्स एसिटल्डिहाइड एंड C6H5MgBr, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H प्लस C6H5MgBr के साथ में इसकी रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो हमें इनिशियली क्या मिलेगा? CH3OH एंड C6H5। उसके बाद इसकी रिएक्शन करवाई PCC के साथ में एंड इन द प्रेजेंस ऑफ DCM, तो अगेन हमें यहाँ पर मिल गया हमारा एसिटोफिनॉन। बिल्कुल सही, तो ए और बी से तो हमें हमारा एसिटोफिनॉन मिल रहा है, आप देख सकते हैं। बात करते हैं सी ऑप्शन की। लेट मी रिमूव इट, आप लोगों ने इसको देख लिया होगा ताकि मुझे स्पेस मिल सके ऑप्शन नंबर सी और डी के बारे में बात करने का। हाँ जी मैम, चलिए ऑप्शन नंबर सी के बारे में बात करते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है? इट्स C6H5 C डबल बॉन्ड O OC2H5। हाँ जी भाई साहब, तो यहां पर देखिए C6H5 C डबल बॉन्ड O OC2H5 है मेरे पास में। अगर मैं पहला मोल लेती हूँ CH3MgBr का, तो मुझे सबसे पहले क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा C6H5 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। एसिटोफिनॉन तो मुझे यही मिल गया भाई, एसिटोफिनॉन तो मुझे यहीं पर ही मिल गया। तो भाई अब हम क्या करें? इनिशियली एसिटोफिनॉन तो यही मिल गया हमें, रिएक्शन करोगे तो आपको यही तो मिलेगा, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, वापस आया, OC2H5 बाहर निकला, यही मिला। दूसरा मोल भी है हमारे पास CH3MgBr का, अब तो नहीं मिलेगा, अब तो एल्कोहल मिलेगा। हाँ जी, और इसका हम H3O पॉजिटिव से एक्वस वर्कअप भी करेंगे। तो एट द एंड जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा C6H5 COH CH3 एंड यहाँ भी CH3, ये मिलेगा हमें। तो हमें ऑप्शन नंबर सी से तो नहीं मिल रहा, ए से मिला, बी से मिला, ऑप्शन नंबर सी से नहीं मिला, तो यही तो हमारा आंसर है। दिस इज आवर आंसर, यही हमारा आंसर है भाई, ध्यान रखिएगा। डी के बारे में बात करें तो यहाँ डेल्टा नेगेटिव है, डेल्टा पॉजिटिव, तो ये देखिए ये यहाँ गया, ये यहाँ गया। मैं आपको ढंग से दिखा देती हूँ विद द रेड पेन ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। इट्स डेल्टा नेगेटिव, इट्स डेल्टा पॉजिटिव, ये यहाँ पर गया, ये ऊपर गया, वापस आया, क्लोराइड निकला। तो एट द एंड हमारा जो प्रोडक्ट मिला वही मिला जो हमें चाहिए था, ये मिला एसिटोफिनॉन। सो ए, बी और डी से मिला, सी से नहीं मिला। आंसर क्या होगा? नॉट वाला होगा, आंसर हमारा सी होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बताएं
एब्सोल्युटली राइट, करेक्ट, समझ में आया। वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 17 एंड इट्स 40 मिनट्स गॉन। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी इसलिए। अदरवाइज तो हम इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेते 40 मिनट्स के अंदर अंदर ही। क्यों भाई? वी आर स्टिल लेफ्ट विद सम मोर क्वेश्चंस हियर एंड लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 18। क्या बात है, सेम वही क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था मेमोरी बेस्ड में। तो सबसे पहले क्या होगा, व्हाट इनिशियली इज गोइंग टू हैपन अप ओवर हियर, जस्ट लेट मी नो। सबसे पहले प्रोटोनेशन होगा। ओके, तो चलिए प्रोटोनेशन किसका? रिंग का होगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर इट्स ओ दिस एंड दिस, द मेन मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। ये देखिए हमारा जो H पॉजिटिव आएगा, सबसे पहले मैं H पॉजिटिव की यहाँ पर बात कर रही हूँ। ये लोन पेयर्स हैं, ये यहाँ शिफ्ट होंगे, ये यहाँ शिफ्ट होगा और ये इस प्रोटोन को अप्रोच करेगा। तो क्या हुआ भाई? तो क्या हुआ? क्या ये देखिए क्या मिला हमें। दिस इज वॉट वी हैव गॉट, दिस इज वॉट वी हैव। आप पॉजिटिव चार्ज यहां लगा दीजिए। ठीक है मैम, यहां लगा दिया। अब क्या करें? अब रिएक्शन करो आगे। सो व्हाट वी हैव नाउ, इट्स बेसिकली अगर देखा जाए 1 2 and 3 इट्स OH वी आर हैविंग। तो ये जो OH है ये कहाँ अटैक करेगा ये बताइए अब आप मुझे। ये OH जो है ये अटैक करेगा इधर, ये जाएगा इधर। हमारा जो मेन मेजर प्रोडक्ट आएगा वो आप देखिए क्या आएगा, इट इज O ओवर हेयर। और यहां से -H पॉजिटिव भी कर दीजिएगा। यहीं पर ही कर रही हूं क्योंकि OH पॉजिटिव आएगा तो H पॉजिटिव पहले ही रिमूव कर देते ताकि हम डायरेक्टली अपने मेन प्रोजेक्ट पे पहुंचे। तो 1 2 3 और ये देख लीजिए, अच्छा लग रहा है यार बनाने में, क्यों? बिल्कुल। तो ये है हमारा मेन मेजर प्रोडक्ट। तो अगर हम देखते हैं इधर उधर, ऑप्शन नंबर डी इज हमारा सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल परफेक्टली क्लियर आंसर है। डन, ठीक है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19 नाउ। क्या बात है यार, इनामीन पे डिस्कशन हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कीटोन विल नॉट गिव इनामीन ऑन ट्रीटमेंट विद सेकेंडरी अमीन्स। हमें पता होता है कि सेकेंडरी अमीन और कार्बोनिल कार्बन्स जो होते हैं, कीटोन आप मान सकते हैं, उनके जब रिएक्शन होता है तो हमें इनामीन फॉर्मेशन होता है। कौन नहीं देगा वो हमें बताना है। यहां पर टर्शरी ब्यूटाइल के बारे में बोला है, इट्स CCH3 होल थ्राइस। ठीक है, तो भाई वैसे ही ऑप्शन मेरे को तो सी लग रहा है। क्यों? अब वो सुनिए। सी, इन ऑर्डर टू फॉर्म इनामीन फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स विद 2 डिग्री अमीन, carbonyl compounds plus 2 degree amines give us the enamine. So in order to form enamine from the reaction of carbonyl compounds with 2 degree amine, the carbonyl compound must have alpha hydrogen. तो ये जो हमारा कार्बोनिल कार्बन है इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। तो ये देखिए अल्फा कार्बन एटम, अल्फा हाइड्रोजन एटम्स हैं। यहाँ पर अल्फा कार्बन एटम, अल्फा हाइड्रोजन एटम्स हैं। ये अल्फा कार्बन एटम्स, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स है। लेकिन ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप्स जो है इट्स कार्बन एंड इट्स Me एंड Me। यहाँ तो नहीं है अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन। कहाँ पर? टर्शरी ब्यूटाइल में। अब अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी ही है, दैट इज नॉट गोइंग टू गिव अस द इनामीन ऑन ट्रीटमेंट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विद द सेकेंडरी अमीन्स। हाँ जी। नाउ अलोंग विद दिस, ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग ऑल्सो, स्टेरिक क्राउडिंग किसकी वजह से? बाय tertiary butyl group, it is basically very difficult for 2 degree amines to attack on the compound. तो steric crowding भी हो रहा है। Secondly और क्या हो रहा है? अल्फा हाइड्रोजन मिसिंग है, अल्फा हाइड्रोजन मिसिंग है। अगर आप ये जानना चाहें कि मैम इनामीन का फॉर्मेशन करके बताओ, तो देखो सपोज मैंने लिया ये कीटोन, ये कार्बोनिल ले लिया मैंने। सबसे पहले इसका होगा प्रोटोनेशन, OH पॉजिटिव। अब अगर इसकी रिएक्शन में करवा रही हूं 2 डिग्री अमीन से, काइंड ऑफ लाइक दिस, तो अब क्या होगा? ये यहां जाएगा, ये यहां आएगा, तो क्या होगा देख लेते हैं क्या होगा। इट्स OH दिस दिस एंड दिस, यहां गया N, यहां आया H, ये हुआ पॉजिटिव, दिस 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 एंड दिस। अब क्या होगा? अब देखिए वैसे तो बेस का है, बेस का फंडा आएगा, बेस आएगा इस एसिडिक प्रोटोन को लेके जाएगा, फिर ये जो OH ग्रुप है उस बेस में से प्रोटोन को ले लेगा, OH2 की तरह निकल जाएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, अल्फा हाइड्रोजन आके डबल बॉन्ड बनाएगा। मैं स्ट्रेट अवे कर देती हूँ। तो ये तो गया यहां पर, और ये देखिए इसने लिए ये वाला प्रोटोन, हमें क्या मिला? ये हो गया OH2 पॉजिटिव, यहां हो गया N, ठीक है, ये हमारे पास आ गया है। माइनस H2O जब मैंने किया
तो ये बना पॉजिटिव यहाँ पर, ये था N, ठीक है। अब क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन है हमारे पास, माइनस H पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ देखिए, आप बहुत ध्यान से देखिएगा, सॉरी ये मैंने गलत बना दिया, ये यहाँ आएगा, सॉरी ये इसी पे आएगा, नाइट्रोजन दिस। अब हमें जो प्रोडक्ट मिला वो कुछ ऐसा दिख रहा है, कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिखना चाहिए, दिखेगा भी, ये इनामीन है हमारा, ठीक है। दिस इज बेसिकली द मैकेनिज्म। तो अल्फा हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, दूसरा स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से 2 डिग्री जो हमारा अमीन है उसको अटैक करने में प्रॉब्लम होगी कंपाउंड से, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, इसलिए हमने ऑप्शन नंबर सी को मार्क बिल्कुल अच्छे से किया हुआ है। चलिए अब बात करते हैं, अरे वाह ये क्वेश्चन, मैं वेट ही कर रही थी, ये क्वेश्चन आया नहीं यार, बिकॉज ये क्वेश्चन आना जरूरी था, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 से 3 बार आ चुका है। किस पेपर में, ऑब्वियसली जून के शिफ्ट के अंदर, जून अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन 2 से 3 बार आया है। An antiseptic Dettol is a mixture of 2 compounds A and B, where A has 6 pi electrons and B has 2 pi electrons. Then what is B? B क्या होगा भाई, जहां पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बी होगा। तो चलिए, डेटॉल जो है इट्स बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ अल्फा टर्पिनियोल एंड क्लोरोजाइलिनॉल। तो अगर मैं अल्फा टर्पिनियोल का स्ट्रक्चर बनाऊं, अल्फा टर्पिनियोल, ये है अल्फा टर्पिनियोल का स्ट्रक्चर, ये है अल्फा टर्पिनियोल का स्ट्रक्चर, दिस इज अल्फा टर्पिनियोल। तो बी कंपाउंड में वी आर हैविंग 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो देख लीजिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये बी है हमारा, ठीक है। अगर क्लोरोजाइलिनॉल के बारे में बात करते हैं तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोजाइलिनॉल, जहां पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा OH, ये है हमारा Me यहाँ, ये है हमारा Me यहाँ, ये है हमारा क्लोरीन यहाँ पर। अब बताइए कोई डाउट, नहीं कोई डाउट। तो दिस इज अल्फा टर्पिनियोल और ये क्या है हमारा, क्लोरोजाइलिनॉल, ठीक है। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स किस में हो गए, जहां पर 1 पाई बॉन्ड है, तो 1 पाई बॉन्ड टर्पिनियोल में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बेस्ट सूटेड आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सिंपल। तो अभी हमने क्या कर लिया, अभी तक हमने किए हैं 20 क्वेश्चंस, वी आर लेफ्ट विद 10 मोर इंटीजर बेस्ड टाइप ऑफ अ क्वेश्चन, ठीक है। चलिए फास्टन अप योर सीट बेल्ट्स, कोशिश करते हैं कि अगले 15 मिनट के अंदर हम ये 10 पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे, कोशिश करें, करते हैं। अ प्रोटीन कंटेन्स 0.30% ऑफ ग्लाइसिन, मॉलिक्यूलर वेट 75 है, द मिनिमम मोलर मास ऑफ द प्रोटीन ए विल बी व्हाट। अरे यार ये तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था, 0.3% ऑफ ग्लाइसिन का मतलब क्या हो गया, 0.3% ग्लाइसिन का मतलब है कि प्रोटीन ए जो है इट इज एक्चुअली कंटेनिंग, सपोज अगर 100 ग्राम का प्रोटीन है तो उसमें से 0.3 ग्राम हमारा ग्लाइसिन है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन जो है, 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इट इज एक्चुअली हैविंग 0.3 ग्राम्स ऑफ ग्लाइसिन, 0.3 ग्राम्स ऑफ ग्लाइसिन है भाई। मोलर मास हमें दिया हुआ है 75 ग्राम्स पर मोल। अब तो हमें पता करना है मिनिमम मोलर मास प्रोटीन का कितना होगा। देखिए 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन कंटेन करता है 0.3 ग्राम्स ऑफ ग्लाइसिन, अच्छा तो 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन कंटेन करेगा 0.3 बाय 100 ग्राम्स ऑफ ग्लाइसिन। तो 75 ग्राम्स ऑफ द ग्लाइसिन विल बी प्रेजेंट इन हाउ मेनी, 75 ग्राम्स ऑफ द ग्लाइसिन। चलिए यार इसमें हम थोड़ा कंफ्यूजन को बंद करते हैं पहले तो। 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन is equals to और it is going to contain 0.3 grams of the glycine. मोलर मास ग्लाइसिन का 75 है, हमें बताना है मिनिमम मोलर मास ऑफ द प्रोटीन, ठीक है। तो 0.3 ग्राम्स ग्लाइसिन जो है इट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, देयरफॉर 75 ग्राम्स ऑफ जो ग्लाइसिन है वो किस में प्रेजेंट होगा, वो कितने ग्राम्स ऑफ प्रोटीन में प्रेजेंट होगा, ये हमें बताना है मिनिमम मोलर मास ऑफ द प्रोटीन। सो इट्स बेसिकली 100 बाय 0.3 इंटू 75। सॉल्व कीजिए, आंसर कितना आएगा, आंसर कितना आएगा, इट इज गोइंग टू कम आउट एज 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। मिनिमम मोलर मास ऑफ प्रोटीन ए इज इक्वल्स टू 25, वेट अ मिनट, यहाँ 25 नहीं भैया, एक मिनट रुक जाइए, कैलकुलेशन को सही करते हैं। इट्स 1000 बाय 3 इंटू 75, सो इट्स 3 1s 3 25s, so it becomes 25,000 grams which is equals to
25 इंटू 10⁻³ ग्राम्स। सो यहाँ आंसर आ गया 25। थोड़ी बहुत मिस्टेक चलती है यार, बट हाँ पेपर में नहीं चल सकती है, ठीक है। ओके, तो हमें बस इतना ही बताना था, मिनिमम मोलर मास ऑफ द प्रोटीन ए कितना होगा। तो 0.3 ग्राम ग्लाइसिन इज इक्वल्स टू 100 ग्राम्स ऑफ अ प्रोटीन, दैट मीन्स 100 ग्राम प्रोटीन में 0.3 ग्राम ग्लाइसिन है। तो हमें बताना है मिनिमम मोलर मास ऑफ द प्रोटीन गिवन द मोलिकुलर वेट ऑफ ग्लाइसिन इज 75। तो 75 ग्राम्स ऑफ ग्लाइसिन में कितना, 75 ग्राम ग्लाइसिन कितने प्रोटीन में प्रेजेंट होगा। So it's actually given to us. It's 25 into 10⁻³ grams. तो हमें आंसर इंटीजर का ही बताना था, डैश इंटू 10⁻³ grams पर मोल, दैट इज 25। तो इसका आंसर आ गया 25। That's absolutely right. हाँ जी, चलिए टॉकिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा क्वेश्चन है। A rigid nitrogen tank stored inside a laboratory has a pressure of 30 atm at 6 am. When the temperature is 27 degrees Celsius. Okay. At 3 p.m., when the temperature is 45 degrees Celsius, the pressure in the tank will be dash atm. PV is equals to nRT का इक्वेशन लगाते हैं, जहां पर मोल्स एंड वॉल्यूम है कांस्टेंट। इसका मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। P1 is pressure at, let's actually consider कि P1 is the pressure at 6 am and P2 is the pressure at 3 pm, ठीक है। तो अगर हम ये करते हैं तो it's P1 by T1 is equals to P2 by T2 कर सकते हैं, जहां पर P1 क्या है, प्रेशर एट 6 am एंड P2 क्या है, प्रेशर एट 3 pm है। सो P1 क्या गिवन है हमें, 30, T1 क्या गिवन है, 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन। P2 हमें पता करना है, T2 कितना है, 45 डिग्री सेल्सियस है। It's basically 45 डिग्री सेल्सियस। ओके, ठीक है। तो 45 डिग्री सेल्सियस अगर है तो 273 प्लस 45 बेसिकली, सो इट्स 8, 1 and 3, इट्स 318 बेसिकली, 318। P2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो आर P2 इज इक्वल्स टू 30 इंटू 318 बाई 300। आप 318 को अप्रोक्सीमेशन अगर ले तो 320 कर सकते हैं। दिस कैंसिल्स विद दिस, कैंसिल्स विद दिस कैंसिल विद दिस, इज इक्वल्स टू 32 atm अप्रोक्सीमेशन से। तो हमें नियरेस्ट इंटीजर चाहिए था, तो 32 हमारा आंसर आ गया है। ओके, मोल्स एंड वॉल्यूम इज बेसिकली द कांस्टेंट, सो वी ओवर हियर हैव टेकन द सेम थिंग। सो इट्स आंसर 32। होप सभी का आंसर 32 आया होगा। बिल्कुल सही मैम, बिल्कुल सही, 32 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। इजी क्वेश्चन है, डायपोल मोमेंट्स के बारे में पूछा है, वो भी ये पूछा है, अमंग्स BeF2, BF3, H2O, NH3, CCl4 and HCl, the number of molecules with non-zero mu not equals to 0, net dipole moment is। चलिए, अगर मैं BeF2 के बारे में बात करती हूँ, तो इस BeF2 में देखिए बॉन्ड डायपोल मोमेंट्स देखिए आप पहले, they are opposite of each other. Bond dipole moments, they are basically opposite of each other. So resultant dipole moment क्या आएगा, because they are actually cancelling out each other. So mu आ गया यहाँ पर 0। बात करते हैं BF3 के बारे में। So यहाँ पर आप BF3 के बारे में जो चर्चा करना चाहते हैं, ये देखिए और ये देखिए आप, ठीक है। So this goes over here, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा ये। So यहाँ पर भी mu is equals to 0 आ गया हमारा BF3 के केस में। H2O के बारे में बात करते हैं, तो H2O में ये देखिए एंड ये देखिए, सो इट गोज ओवर है, इट गोज ओवर है, इनका भी रिजल्टेंट ऊपर जाएगा, तो इन अ वे टोटल ऊपर गया, तो म्यू नॉट इक्वल टू 0 आ गया। इट्स H2O जो इसका नॉन जीरो डायपोल मोमेंट है। अमोनिया के बारे में बात करते हैं, इट्स NH और ये देखिए, तो इसका ये गया, ये यहाँ गया, सो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट ऊपर की तरफ गया, सो म्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तो इट्स NH3, 2 कंपाउंड। CCl4 के बारे में बात करते हैं, ये सिमेट्रिक कंपाउंड है हमारा, तो इसके अंदर इट्स अ सिमेट्रिक कंपाउंड, म्यू की वैल्यू इज इक्वल्स टू 0। और अगर मैं HCl के बारे में बात करूं, तो यार यहाँ पर तो आप देख ही सकते हैं म्यू नॉट इक्वल टू 0 ही होगा, ठीक है। तो देयर आर 3 कंपाउंड्स, H2O, NH3 एंड HCl, जिसका वी आर एक्चुअली हैविंग नॉन जीरो नेट डायपोल मोमेंट। देयर आर 3 पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स, 3 सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स का तो डायपोल मोमेंट आप देखेंगे, इट इज गोइंग टू कम आउट एज व्हाट, 0, ठीक है। तो ये यहाँ गया,
this goes like this goes like this and this goes like this. So एक तरह से they are going to cancel out each other. ठीक है, ये cancel out each other कर देंगे अपने आप को. ओके, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, ध्यान रखिएगा इसका. 3 है इसका आंसर. मूविंग अहेड एंड टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 24. At 345 Kelvin, the half-life for the decomposition of a sample of a gaseous compound initially at 55.5 kilopascal was 340 seconds. ठीक है. This is the half-life of the decomposition of the sample of gaseous compound, fine, which is 340 seconds. Now when the pressure was 27.8 kilopascal, half-life हमें मिली 170. 340 का आधा हो गया. The order of the reaction is, देखिए यहाँ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के बारे में बात करते हैं. अगर मैं टी हाफ के बारे में बात करती हूँ फॉर nth ऑर्डर, इट्स बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट 1/P0, क्योंकि हम गैस के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं, गैशियस रिएक्टेंट्स के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं, गैशियस सैंपल के डिकम्पोजिशन के बारे में बात कर रहे हैं. दिस इज व्हाट वी आर हैविंग नाउ. अगर मैं ऐसे लिखती हूँ टी हाफ ऑफ द 1 अपॉन टी हाफ ऑफ द 2 is equals to P0 of what 2 and it's n minus 1 upon P0 of 1 raised to power n minus 1. Substitute the values. तो ये आपको जब substitute करेंगे it's 340 upon 170. ठीक है, and it will be equals to 27.8 by 55.5 raised to power n minus 1. n minus 1, बस इसको यही करना है आपको. So it comes out to be 2 equals to 1/2 raised to power n minus 1. 1/2 raised to power n minus 1 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 2 raised to power 1 minus n? Yes, that means 1 minus n is equals to what? 1. So अगर मैं n की वैल्यू पता करना चाहती हूँ, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, इट कम्स आउट टू बी 1 minus 1 equals to 0. तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या आ गया हमारा? 0 आ गया. सिंपल, आपको nth ऑर्डर टी हाफ की इक्वेशन के बारे में पता करना था और कुछ नहीं था. सिंपल क्वेश्चन. ठीक है, आ गया. अब बात करते हैं अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन के बारे में. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, वो भी सिंपल सा है. अ सोल्यूशन ऑफ Fe2SO4 thrice is electrolyzed for X minutes with a current of 1.5 ampere to deposit 0.3482 grams of iron. वैल्यू क्या है x की, ये हमें बतानी है. What is the value of x? मिनट्स के अंदर ही, नियरेस्ट इंटीजर तक. एंड 1 फैरेडे हमें दिया हुआ है 96500 कूलम्स पर मोल. एटॉमिक मास आयरन का हमें दिया हुआ है 56 ग्राम्स पर मोल. तो क्या करेंगे, चलिए बताइए. सिंपल सी बात है, it's Fe2SO4 thrice. That means we are actually having Fe plus 3 oxidation state. So Fe plus 3 oxidation state, it gains 3 electrons and we are going to have Fe over here. क्योंकि यहाँ पर solution जो है Fe2SO4 thrice का, it has been electrolyzed to deposit some grams of Fe. तो this is the equation. इसका मतलब यहाँ पर ये है 3 faradays of charge will deposit 1 mole of Fe. 3 faradays of charge deposits 1 mole of Fe. क्लियर है. तो यहाँ अगर मैं moles of Fe deposited के बारे में बात करती हूँ, moles of Fe deposited, कितने होंगे moles of Fe deposited? It will be the given weight 0.3482 divided by molecular weight which is 56. जब इसको कैलकुलेट करेंगे आपका आंसर आएगा 6.2 into 10 raised to power minus 3. आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा है, टाइम कम है, तो सारे क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करने नहीं है आपको. वैसे भी 30 क्वेश्चंस दिए हैं, 5 आपको उड़ाने हैं, तो आप इस कैलकुलेशन को छोड़ सकते हैं. इस क्वेश्चन को देखते रहे, छोड़ सकते हैं आप, ये मेरी राय मानिए तो. ठीक है, हमारे पास मोल्स ऑफ Fe डिपॉजिटेड आ गया. अब नाउ फॉर 1 मोल ऑफ Fe चार्ज रिक्वायर्ड इज 3 फैरेडे. ये मैंने आपको इनिशियली बता दिया था. फॉर 1 मोल ऑफ Fe चार्ज रिक्वायर्ड इज 3 फैरेडे. सो वी कैन राइट फॉर 6.2 into 10 raised to power minus 3 mole Fe, charge required is equals to charge required कितना होगा? It will be 3 into 6.2 into 10 raised to power minus 3 फैरेडे होगा. ठीक है, क्लियर है ये वाली बात. ओके, अगर इसको कूलम्स में चेंज करूं तो Q will be then equals to, ये देखिए
हमारे को पता है कि 1 मोल Fe के लिए चार्ज रिक्वायर्ड था 3 फेरेडेज फॉर 6.2 × 10⁻³ मोल्स ऑफ Fe चार्ज रिक्वायर्ड इज दिस मच फेरेडेज। तो अगर कूलम्स में चेंज करें तो देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 × 6.2 कम्स आउट टू बी 18.6 × 10⁻³ फेरेडेज में चेंज कर मतलब कूलम्स में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 96500 कूलम्स। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा आपका 1794.9 कूलम्स। ये आएगा आपका आंसर। ये वाली बात क्लियर हो गई? क्यू आ गया हमारे पास में? यस मैम, क्यू आ गया। क्यू क्या होता है? I इंटू टी होता है। I की वैल्यू क्या है हमारे पास में? I की वैल्यू 1.5 है, इंटू टी आ गया यहाँ पर। तो यहां से अगर मैं टी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूं, इट्स 1794.9 डिवाइडेड बाय 1.5। टी हमारा यही आएगा 1.5। दिस इज 1.5 एम्पियर गिवन टू अस। दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। मल्टीप्लाइड बाय 60, तो हमारा आंसर आ जाएगा मिनट्स में। किस में आ जाएगा हमारा आंसर? मिनट्स में आ जाएगा। बस इसी को आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा 20। द वैल्यू ऑफ x इज 20। डन? दैट्स एब्सोल्युटली राइट। हाँ जी मैम, ये हमें समझ में आ चुका है। क्लियर? q इज इक्वल्स टू I इंटू टी हमने कर दिया। t हमें किस में चाहिए? मिनट्स में चाहिए। सो यस, वी डिड दिस एंड द रिजल्ट इज इन आवर हैंड। 20 इसका जवाब आ जाएगा। क्लियर? डन 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 डन। 20 इज द राइट आंसर। होप दैट्स एब्सोल्युटली इनटू योर माइंड, इनटू योर ब्रेन। इसमें और कोई दिक्कत वाली बात या कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है आपको। दैट्स एब्सोल्युटली कूल। ठीक है? यस, हाँ जी मैम, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। ओके फाइन, कूल। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन PCl3 प्लस H2O गिव्स अस A प्लस HCl, A प्लस H2O गिव्स अस B प्लस HCl। पूछा है B में आयनाइजेबल प्रोटॉन्स बताने हैं। अब देखिए PCl3 प्लस H2O है, A प्लस HCl, HCl बाहर निकल गया तो A क्या बनेगा? अगर HCl बाहर निकल गया तो A हमारा होगा POHCl2। अब देखिए POHCl2 प्लस H2O है, फिर दोबारा से HCl बाहर निकल गया तो अब यहाँ क्या बचेगा? यहाँ होगा POH होल ट्वाइस Cl प्लस HCl था। तो ये है हमारा A, ये है हमारा B। हम ऐसे कर सकते हैं? हाँ जी मैम, कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ आयनाइजेबल प्रोटोन प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट B, प्रोडक्ट B में हमारे पास 2 हाइड्रोक्साइड ग्रुप्स हैं, POH, OH एंड Cl। तो 2 हाइड्रोक्साइड ग्रुप्स हैं। हाइड्रोजन अटैच्ड टू ऑक्सीजन आर आयनाइजेबल। हाइड्रोजन अटैच्ड टू ऑक्सीजन आर आयोनाइजेबल। इस बात का ध्यान रखिएगा। सिंस 2 OH ग्रुप है, 2 आयनाइजेबल प्रोटॉन्स हो गए हमारे पास में। आंसर आ गया हमारे पास 2। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा सोचना ही नहीं था। HCl बाहर निकल गया, बचा क्या? फिर HCl बाहर निकल गया, फिर बचा क्या? अब देख लीजिए क्या बचा, उसमें से आयनाइजेबल प्रोटॉन्स पता कर लीजिए। हाँ, ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन अटैच्ड विद ऑक्सीजन इज आयनाइजेबल इन नेचर। बस आंसर इज सॉर्टेड आउट। क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में बात करते हैं। सो इट्स क्वेश्चन नंबर 27। ओके, इसको ना मैं बिना सॉल्व कर मतलब पेन तो उठाऊंगी, लेकिन काफी हद तक इसको हम बिना पेन के सॉल्व करेंगे। अमंग्स FeCl3 डॉट थ्राइस ऑफ H2O, K3FeCN6 एंड CONH3 होल 6Cl3, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ द इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वो होते हैं द कॉम्प्लेक्सेस विच एक्चुअली डू हैव द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो भैया ये तो आउट ऑफ द रेस हो गया। FeCl3 और थ्राइस ऑफ H2O, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होना चाहिए हमारे पास में, यहाँ तो वीक फील्ड लिगेंड है। वी आर लेफ्ट विद K3FeCN6 एंड CONH3 6Cl3। अब इन दोनों, ये दोनों ही इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग फील्ड है। चलिए हमें एक ऐसा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के बारे में पता करना है, उसके स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में जानना है, दैट अब्सॉर्ब्स लाइट एट शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ कम है दैट मीन्स एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। एनर्जी, यहां हम CFSC के बारे में बात करते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? जहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। CN और NH3 में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा है? साइनाइड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड लिगेंड। ठीक है,
दैट मीन्स इसकी स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फिश स्प्लिटिंग एनर्जी साइनाइड के केस में ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा, वेवलेंथ कम, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू एब्जॉर्ब द लाइट एट शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पॉसिबल। दैट मीन्स हमें सिर्फ इसी के बारे में चर्चा करनी है, K3FeCN6 के बारे में ही हमें यहाँ पर चर्चा करनी है। सो इट्स द इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स दैट एब्जॉर्ब्स द लाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अब यहाँ पर जो Fe है, इट्स FeCN6 3 नेगेटिव, दैट मीन्स Fe हमारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, दैट मीन्स इट्स 3d5 है भाई ये। अब यहाँ पर 3d5 है और गिवन द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सो इट्स 1 2 3 4 एंड 5, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है हमारे पास में। सो हमारी म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, √1 into 1 + 2 विच इज इक्वल्स टू √3 विच इज इक्वल्स टू √3 का क्या वैल्यू आएगा हमारे पास में। अगर मैं √3 के बारे में यहाँ बात कर रही हूँ, सो व्हाट विल बी द राइट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इट विल बी 1.9 समथिंग बोहर मैग्नेटॉन, बिकॉज 2 2s are 4, ये 3 है तो 2 से कम आएगा, 1.9 बोहर मैग्नेटॉन। लेकिन नियरेस्ट इंटीजर की बात करें तो हम आंसर यहाँ लिख के आएंगे 2 बोहर मैग्नेटॉन। आंसर आ गया हमारा 2 बोहर मैग्नेटॉन। क्लियर, डन, कोई बात नहीं कोई डाउट नहीं। चलिए, heading towards the ending, the Novolac polymer has the mass of 963 grams. अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपको Novolac का स्ट्रक्चर याद होना जरूरी है, ठीक है। स्ट्रक्चर भी नहीं, छोड़िए, बात करते किसी और पर्टिकुलर चीज की। Novolac का स्ट्रक्चर तो चलो याद है, उसका मोलर मास तो याद होना ही चाहिए, क्योंकि मास हमें Novolac का दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स पता होनी चाहिए। Novolac polymer has a mass of 963 grams. The number of monomer units present in it are. तो उसके लिए हमें मोलर मास Novolac का पता होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि ये आपको याद हो, तो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि Novolac का स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं। ये देखिए, ये है हमारा Novolac का स्ट्रक्चर, OH, then it's CH2 over here, then this OH, it's CH2 over here, and this is what. So molar mass अगर हम पता करें, मोलर मास ऑफ द मोनोमर, ठीक है, मोलर मास, नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट, Novolac इज बेसिकली दिस, ठीक है। तो अगर मुझे मोलर मास पता करना है मोनोमर का, तो आप मुझे क्या ये बता सकते हैं Novolac एक्चुअल में होता क्या, कुछ तो आपको आइडिया होगा रिगार्डिंग दी Novolac, मोनोमर यूनिट इन Novolac, चलिए बताइए। तो यहां पर बेसिकली Novolac किससे बनता है, इट्स बेसिकली फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन को कहते हैं फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, है कि नहीं, जस्ट लेट मी नो, ठीक है। ओके, द नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स प्रेजेंट इन इट आर, वो हमें पता करना है। अगर 963 ग्राम्स हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, Novolac पॉलीमर का मास प्रेजेंट है। सो एटॉमिक मास ऑफ मोनोमर यूनिट ऑफ Novolac, ये हमें जानना है। ओके, सो व्हाट यू आर अप टू, मोलर मास ऑफ Novolac, दैट्स द थिंग। ओके, मोलर मास भी नहीं जानना हमें, तो मोनोमर का मास जानना है। ओके, सो मोलर मास ऑफ मोनोमर इज बेसिकली ओवर हेयर इज 107 ग्राम्स पर मोल, ठीक है। क्लियर है ये वाली बात कि नहीं क्लियर है। वी वॉन्ट टू टॉक अबाउट व्हाट, हमें क्या जानना है, सोचिए। मैं यहाँ पर थोड़ा वेट और विचार करती हूँ। Novolac पॉलीमर का मास 963 ग्राम्स गिवन है, नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स प्रेजेंट इन हमें जानना है, तो हमें मोलर मास मोनोमर का पता होना चाहिए, मोलर मास ऑफ मोनोमर यूनिट, ठीक है। तो फिनॉल है हमारे पास में यहाँ पर ये, प्लस ये है HCHO। तो कैसे जानेंगे क्या है इसका मास, जल्दी से बताएंगे आप मुझे, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ फिनॉल। तो भाई अगर मैं मोलर मास फिनॉल के बारे में बात करती हूं, तो हम इसको मार्क कर सकते हैं 94, ठीक है। और HCHO का देखें तो इट्स 1 + 12 + 1 + 16,
So it's 16 and it's 2 18 and 12. 8 into 10 1 3 30. नहीं भाई, ये तो काफी हाई हो जाएगा. तो क्या करना चाहिए यहाँ पर हमें? What you think that we should go for? जल्दी से बताइए क्या करेंगे, कोई आइडिया? जस्ट लेट मी नो, जल्दी से बताइए. वेटिंग फॉर यू गाइज. कमेंट बॉक्स में फटाफट से कीजिए कमेंट. हाँ जी, लेट मी नो अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ठीक है, क्या बताएंगे? हमें एक मोनोमर यूनिट के बारे में जानना है यहाँ पर. ओनली वन मोनोमर यूनिट. ठीक है, तो अगर मैं एक मोनोमर यूनिट के बारे में यहाँ पर पता करना चाहूँ तो देखिए, ये है हमारा 94 प्लस इट्स 12 प्लस 2. सो ये हो गया हमारा 14. सो इट्स बेसिकली 4 and 4 8 and 9 and 1 10. 108 लेके हम इसका आंसर कर सकते हैं. ठीक है, आ गया समझ में? ये है हमारी एक मोनोमर यूनिट. ये है हमारी एक मोनोमर यूनिट. ठीक है, अब सुनिए, मैंने इतना टाइम आपको इधर उधर घुमाया, ये सब किया, जस्ट टू नो कि आप मेरी बात सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, इसलिए, और कोई वजह नहीं थी. तो यहाँ पर मोलर मास ऑफ मोनोमर के बारे में अगर हमें जानना है, सो इट कम्स आउट टू बी, ऐसे हमने 94 लिया. ठीक है, प्लस हमारे पास में ये CH2 यूनिट थी, तो 2 + 12 हो गया 14. तो इट कम्स आउट टू बी 108 ग्राम्स पर मोल. ठीक है, सो मोलर मास यहां पर लिख देती हूं मैं. मोलर मास ऑफ मोनोमर क्या हो गया? 108 ग्राम्स पर मोल हो गया. कितनी ऐसी यूनिट्स प्रेजेंट होंगी? तो इट विल बी, इफ आई जस्ट टॉक अबाउट 9 है भाई यहाँ पर आंसर. तो 963 हमारे पास है. तो 963 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम? 963 डिवाइडेड बाय, इट विल बी हाउ मच? 108. It comes out to be 8.9. It comes out to be 8.9. So 963 divided by 108 basically. ये आ जाएगा n, the number of monomer units. तो it's 8.9 coming out. तो हम इसको नियरेस्ट इंटीजर तक 9 लिख देंगे. ठीक है, क्लियर है, सिंपल है. तो आपको यही देखना. तो नोवोलेक क्या है? इट्स फिनोल. नोवोलेक क्या है? फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन है. अगर उस नोवोलेक का एक मोनोमर यूनिट को देखा जाए तो उसका मोलर मास कितना है? 108. हमें गिवन कितना है मास? 963. बस यही करना था आपको. चलिए, लास्ट क्वेश्चन तो नहीं है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन कहूंगी. तो इसके बारे में क्या जवाब देंगे? पढ़िए इस क्वेश्चन को, क्या बोला गया है, क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन के बारे में. दैट इज व्हाट द मेजर पर्पस वी नीड टू टॉक अबाउट. हाउ मेनी ऑफ द गिवन कंपाउंड्स विल गिव अ पॉजिटिव बाययूरिट टेस्ट. ठीक है, सो बेसिकली बाययूरिट टेस्ट हम किस लिए यूज करते हैं? टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स. लेकिन पूछा गया है हाउ मेनी ऑफ द गिवन कंपाउंड्स विल गिव अ पॉजिटिव बाययूरिट टेस्ट. विल इट बी ग्लाइसिन, ग्लाइसाइल एलानिन, ट्राइपेप्टाइड एंड बाययूरिट. देखिए, मैं आपको यहां पर ये कहूंगी कि बाययूरिट टेस्ट इज बेसिकली गिवन बाय ऑल द प्रोटीन्स and the peptides having at least 2 peptide linkage. All proteins plus what? All the proteins and peptides having at least 2 peptide bond. ध्यान रखिएगा. अब ग्लाइसिन तो फ्री अमीनो एसिड है. ग्लाइसाइल एलानिन, ग्लाइसिन प्लस एलानिन से फॉर्म होके हमें ये पर्टिकुलर ग्लाइसाइल एलानिन मिला. यहाँ पर तो सिर्फ एक ही पेप्टाइड बॉन्ड होगा, तो ये आउट ऑफ द रेस, ये आउट ऑफ द रेस. ट्राइपेप्टाइड देगा, बाययूरिट भी देगा. बाययूरिट के बारे में अगर आप जानना चाहें तो यहाँ देख लीजिए, बाययूरिट है ये. तो ये बाययूरिट हमारा बाययूरिट टेस्ट तो देगा ही. ट्राइपेप्टाइड में 3 पेप्टाइड लिंकेज है, तो इसका आंसर होगा 2 हमने यहाँ पर लिख दिया है, मेंशन्ड इट अप. क्लियर, कोई डाउट नहीं. चलिए लास्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं. ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था मेमोरी बेस्ड के अंदर. तो लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट क्वेश्चन. द न्यूट्रलाइजेशन अकर्स जब, कब? when 10 ml of 0.1 molar acid A is allowed to react with 30 ml of 0.05 molar base. The basicity of the acid A is what? तो यहाँ पर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है क्या? मैं ये कह सकती हूँ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड ए, मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड
A is equals to मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस. बेस क्या है मेरे पास? MOH होल ट्वाइस. बस यही सॉल्व करना है. मिली इक्विवेलेंट्स का मतलब मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर के बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं. क्लियर है? तो उस हिसाब से लेट्स टॉक अबाउट. सो यहाँ देखिए, एसिड ए की में मोलैरिटी 0.1, वॉल्यूम 10 ml, 10 लिख देते हैं, इनटू इसका तो एन फैक्टर ही निकालना है हमें, क्योंकि हमें बेसिसिटी ऑफ द एसिड निकालना है, इसका एन फैक्टर इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ द बेस. सो बेस में वी आर हैविंग 0.05 इंटू 30. एन फैक्टर क्या है बेस का? इट्स M2 पॉजिटिव and twice of hydroxide ion. So N factor is basically the total number of charge present on the cation and the anion. The total charge present on the cation and the total charge present on the anion. That is actually equals to 2. तो यहाँ पर हमारा base N factor for base कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा बस. तो हमारा N factor acid के लिए, या फिर कहिए basicity of the acid क्या हो जाएगा? 0.05 into 30 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 10. ये तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, यही होगा. 0.05 इंटू 30 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 10. तो इसको सॉल्व करेंगे, आंसर कितना आएगा? 3 आएगा. एन फैक्टर या बेसिसिटी ऑफ द एसिड इज 3. ठीक है, आंसर आ गया हमारा 3. दैट्स बेसिकली द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन. So my dear ones, this was all about this particular session. Hope you have loved the session, enjoyed the session. Since यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेशन में ज्यादा मेरा आप लोगों से इंटरेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस में मैंने जिस तरह से आपके साथ इंटरेक्ट किया है, मेक श्योर दैट यू रिप्लाई इन द कमेंट बॉक्स. एंड यस माय डियर वंस, आई जस्ट वांट दैट यू शुड हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस पर्टिकुलर सेशन अमंग योर पेयर ग्रुप्स. वेल, आई होप and I wish that you come out with the flying colors in the June attempt, as well as best of luck for your next coming attempt, the July attempt. So, bye-bye, take care. We'll be meeting you soon in the upcoming sessions. So, for that, you need to subscribe the channel Akash Byju's JE. So, for the regular notifications of the classes, you need to subscribe the channel. Even, you need to join our Telegram group. Bye-bye, take care, and we'll be meeting you soon.